Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel English with Zubair. In this video we will discuss important short questions of English 11. Listen to his first flight that is written by Lamb of Flattery. This discussion will enhance your knowledge and your understanding about his first flight, and it will help you in exam preparation. So let's start. The first question is, why did the young seagull have to join the company of his family? नौजवान समंदरी परिंदे को अपनी खानदान के साथ शामिल होने की ज़रूरत क्यों पेश आई? The young seagull had to join his family because staying alone meant he would die of starvation and remain helpless. नौजवान समंदरी परिंदे को अपने ख़ानदान के साथ शामिल होना इसलिए पड़ा क्योंकि अकेले रहने का मतलब था कि वो भूख से मर जाएगा और बेरियार वो मददगार रह जाएगी. Without their support, he could not face the dangers of the outside world. उनकी मदद के बगैर मतलब वालिदैन के बगैर उनकी फैमिली के बगैर वो बाहर की दुनिया के ख़तरों का मुकाबला नहीं कर सकता था. To stay alive, he need to learn how to fly, glide over the waves and catch fish. जिंदा रहने के लिए उसे उड़ना, लहरों पर तैरना और मछलियाँ पकड़ना सीखना ज़रूरी था. Just like his family members who had already mastered these skills in order to survive. बिल्कुल अपनी ख़ानदान के अफराद की तरह जिन्होंने ज़िंदा रहने के लिए ये महारतें पहले ही सीख ली थी. Question number 2. Why don't his parents, his brother and sister give him food? उसके वालिदैन, भाई और बहन उसे खाना क्यों नहीं देते थे? His parents, his brothers and sister do not give him food because they want to compel him to fly with them. उसके वालिदैन, भाई और बहन उसे खाना नहीं देते क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने साथ उड़ने पर मजबूर हो जाए. For a while they wish to keep him hungry. कुछ देर के लिए वो उसे भूखा रखना चाहते थे. They believe that he will undoubtedly get off the leash and fly with them when he gets hungry. उन्हें यकीन है कि जब उसे भूख लगेगी तो वो ज़रूर चट्टान को छोड़ेगा और उनके साथ उड़ेगा. Question number 3. What was the attitude of the family toward the young seagull? Was it agreeable to you or not explained? नौजवान समंदरी परिंदे के बारे में ख़ानदान का रवैया कैसा था? क्या ये रवैया आपको काबिल कबूल लगा या नहीं? वजाहत करें. मतलब आप इसकी एटीट्यूड से एग्री करते हो कि एग्री नहीं करते हो, आपने एक्सप्लेन करना है. अपरेंटली द एटीट्यूड ऑफ फैमिली टुवर्ड द यंग सीगल वाज हार्श. ज़ाहिरी तौर पर नौजवान परिंदे के ख़ानदान का रवैया इनके साथ सख्त था. They abandoned him alone. उन्होंने उसे अकेला छोड़ा. They did not give him anything to eat. उन्होंने उसे कुछ खिलाया नहीं. They wanted him to leave the nest, so they took this action. वो चाहते थे कि वो आशियाने से निकल जाए, इसलिए उन्होंने ये इक़दाम किया, ये कदम उठाया. The attitude of the family members was agreeable. ख़ानदान के अफराद का रवैया काबिल कबूल था because it was not based on ill will, principally it was for his well being. क्योंकि ये नापसंदीदगी या बुरा इरादा नहीं था, असल में ये सब इसकी भलाई और बेहतरी के लिए था. Question number 4. Describe in your own words the feelings, actions and thoughts of the young seagull soon after his fall. अपने अल्फाज में बयान करें कि गिरने के फ़ौरन बाद नौजवान समंदरी परिंदे के जज्बात, अमल और ख्यालात क्या थे? Soon after his fall, he was overwhelmed by such an intense fear that his heart seemed to stop beating. The next moment, he felt his wings spread outwards. गिरने के फ़ौरन बाद उसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ जिसकी वजह से दिल रोकने लगा. अगले ही लम्हे उसने अपने परों को फैलता हुआ महसूस किया. He felt the wind rushing against his breast feathers and felt the tips of his wings
cutting through the air. उसे हवा अपने सीने के परों से टकराते हुए महसूस हुई और परों के नोक को हवा को काटते हुए. Now he overcome his fear and shouted happily as he started flying with his family members, driving, courting, banking, soaring and diving. फिर उसने अपने होप पर काबू पाया और खुशी से चीखा जब वो अपने खानदान के साथ घूमते, मोड़ते, बुलंद होते हुए, अगोता लगाते हुए उड़ना शुरू हुआ. Question number 5. What could be the author purpose behind writing the story His First Flight? इसकी पहली प्रवास, कहानी लिखने के पीछे मुसन्निफ का, राइटर का क्या मकसद हो सकता है? The author wrote the story His First Flight to teach us that the fear we feel at the beginning of any new task is usually unnecessary and without reason. मुसन्निफ ने ये कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट इसलिए लिखी ताकि हमें ये सिखा सके कि किसी नए काम के आगाज़ में जो होप होता है वो अक्सर बेवजह और गैर ज़रूरी होता है. He wants to tell us that courage brings success. वो हमें ये बताना चाहता है कि हौसलामंद लोग हमेशा कामयाब होते. A person should never lose hope or confidence. एक शख्स को, एक आदमी को कभी उम्मीद या एतमाद नहीं खोना चाहिए. Indeed, they should always think positively and believe they will succeed rather than fail. इसकी बजाय उसे हमेशा मुस्बत सोचना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि वो नाकामी के बजाय कामयाबी हासिल करेगा. Question number 6. Compare and contrast the attitude of the family members before and after the flight of the young seagull and his first flight. नौजवान समंदरी परिंदे की उड़ान से पहले और बाद में खानदान के अपराध के रवैये का मुआवजा करें और फ़र्क बयान करें. मतलब कंपेयर एंड कंट्रास्ट बयान करें कि पहले उन समंदरी परिंदे के साथ खानदान का रवैया क्या था और इसके बाद खानदान का रवैया कैसा था. Before the flight of the young seagull, his family was behaving ruthlessly. नौजवान परिंदे की उड़ान से पहले उसका खानदान उसके साथ सख्ती से पेश आ रहा था. All of them were upbraiding him and encouraging him to come out of the ledge and make his flight. वो सब उसे डांटते रहते थे और उसे चट्टान के किनारे से निकलकर उड़ने की हिम्मत दे रहे थे. They were not sharing their foods with him. Even his mother was acting like a stranger. वो उसके साथ अपना खाना भी शेयर नहीं कर रहे थे, हत्ता कि उसकी माँ भी अजनबियों की तरह पेश आ रही थी उसके साथ. But after he made his first flight, all of them started loving and praising him. लेकिन जब उन्होंने पहली उड़ान भरी तो सब ने उससे मोहब्बत और तारीफ करना शुरू कर दी. Question number 7. Identify the sentence in the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में सेंटेंस आइडेंटिफाई करें हिज फर्स्ट फ्लाइट में. इट शोज काज एंड इफेक्ट, जो काज को भी शो कर रहा है और इफेक्ट को भी शो कर रहा है. द सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हिच शोज काज एंड इफेक्ट्स इज, वो सेंटेंस ये है, ही फेल्ट सर्टेन दैट his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the lateral hole under the ledge where he slept at night. उसे यकीन था कि उसके पर उसे कभी सहारा नहीं दे सकेंगे, चनांच इसलिए उसने अपना सर झुकाया और भागकर उस छोटे सुराख में वापस चले गया जहां वो रात को सोता था. रीड द सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ को पढ़े. अब द टेक्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट की टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल डिवाइस. ट्रांजिशनल डिवाइस को आइडेंटिफाई करें एंड स्टेट देयर फंक्शन, और इनका फंक्शन बताएं. व्हाट इज ट्रांजिशनल डिवाइस? ट्रांजिशनल डिवाइस क्या है? ट्रांजिशनल डिवाइस है वर्ड, एक वर्ड होता है और फ्रेज या फ्रेज होता है दैट कनेक्ट्स आइडियाज एंड राइटिंग, जो तहरीर में ख्यालात को यानी आइडियाज को कनेक्ट करे. इट इम्प्रूव द फ्लो ऑफ योर राइटिंग एंड मेक इट सिंपल टू रीड.
ये तहरीक की जो फ्लो है वो बेहतर बनाता है और जो रीडर होता है मतलब रीडर के लिए पढ़ना आसान होता है। द वर्ड्स दैट और ट्रांजिशन डिवाइस कौन से हैं? सिंस देन, द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ऑल मॉर्निंग, हाउ टू, एंड while have been used as a transition। ये सारे एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस यूज हुए। दे फंक्शन एज एन अपोरिक, फंक्शन क्या करे, इधर अपोरिक फंक्शन कराए, एंड अपोरिक रिफरेंसेस फंक्शन कराए इन सेकेंड पैराग्राफ पे। तो ये था आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 हिस्पर्स फ्लाइट इंग्लिश 11 की। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।